السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہندوستان بری طرح سے کورونا وائرس کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ ہر طرف سے پریشان کر دینے والی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ کہیں بیڈ نہیں ہے تو کہیں آکسیجن کے لیے مارا ماری چل رہی ہے۔ حالانکہ آکسیجن کے لیے مرکزی حکومت نے کچھ قدم آگے بڑھائے ہیں، وہیں دہلی حکومت کا کہنا ہے کہ ان کے پاس بیڈز کی کمی ہے اور آکسیجن بھی کم ہے۔ راجستھان نے آج سے 3 مئی تک لاک ڈاؤن جیسی سخت پابندیاں لگا دی ہے۔ نئے آنے والے معاملے ہر دن نئے ریکارڈ بنا رہے ہیں۔ آج یعنی پیر کو 2,74,000 کے قریب نئے معاملے سامنے آئے ہیں اور پچھلے 24 گھنٹوں میں 1619 افراد فوت ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے پیر کی صبح جاری اپڈیٹ کے مطابق ملک بھر میں پچھلے 24 گھنٹوں میں کورونا کے 2,74,000 کیسز سامنے آئے ہیں اور مرنے والوں کی تعداد 1619 بتائی گئی ہے۔ ہندوستان میں کورونا وائرس کی وجہ سے صورتحال مزید خراب ہوتی جا رہی ہے۔ بہت سی ریاستوں نے اسی وجہ سے منی لاک ڈاؤن یا نائٹ کرفیو جیسے پابندیاں عائد کر دی ہے، لیکن جیسے جیسے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں ایک بار پھر قومی لاک ڈاؤن کا خطرہ منڈلانے لگا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے اس بارے میں کہا کہ مرکز نے اب پابندیوں سے متعلق فیصلہ کرنے کے لیے ریاستوں کے ہاتھ میں مواد دے دیے ہیں۔ ریاستی حکومت خود اپنے فیصلے لے سکتی ہے۔ ایک انٹرویو میں امت شاہ نے کہا کہ پچھلے 3 ماہ سے ہم نے ریاستوں کو پابندیاں عائد کرنے کا اختیار دیا ہے، کیونکہ ہر ریاست میں صورتحال ایک جیسی نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں ریاستی حکومت کو اپنے حالات کے مطابق فیصلہ کرنا پڑے گا۔ ملک میں میڈیکل آکسیجن کی قلت کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے مرکز نے 9 مخصوص مقامات کو چھوڑ کر صنعتی مقاصد کے لیے گیس کی سپلائی پر پابندی لگا دی اور صحت تنصیبات میں 162 پلانٹس کی تنصیب کا کام تیز کر دیا، جبکہ ریلوے نے آکسیجن کی منتقلی کے لیے خصوصی ٹرینوں کا اعلان کیا ہے۔ یہ فیصلہ ایک ایسے وقت کیا گیا جب ملک میں 2.5 لاکھ سے زیادہ ریکارڈ کورونا وائرس انفیکشن پائے جا رہے ہیں اور سرگرم معاملات 20 لاکھ سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ مرکزی وزیر صحت ہرش وردھن نے کہا کہ ریاستوں کو ریمڈیزیویر کی سپلائی دوگنی کرنے، آکسیجن اور کووڈ ویکسینز کی بلاک روک ٹوک سپلائی کو یقینی بنانے اور صحت انفراسٹرکچر میں اضافے کے لیے ہر طرح کی مدد فراہم کی جا رہی ہے۔ بہار حکومت نے اتوار کو فیصلہ کیا ہے کہ قاتل وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے نئے اقدامات کے تحت رات 9 بجے سے صبح 5 بجے تک نائٹ کرفیو نافذ کیا جائے گا۔ چیف منسٹر نتیش کمار نے یہ اعلان کیا۔ انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ 15 مئی تک اسکولز، کالجز اور کوچنگ سینٹرز بند رکھنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ بہار میں کورونا وائرس کیسوں میں اچانک اضافے کے پیش نظر 15 مئی تک تمام مذہبی مقامات بھی بند رہیں گے۔ تمل ناڈو حکومت نے 12ویں جماعت کے امتحانات ملتوی کرنے کے ساتھ ساتھ اتوار کو لاک ڈاؤن اور رات 10 بجے سے صبح 4 بجے تک نائٹ کرفیو کا اعلان کیا ہے۔ اس فیصلے پر 20 اپریل سے عمل ہوگا۔ چیف منسٹر کے پلانی سوامی کی صدارت میں کووڈ صورتحال کا جائزہ لینے کے ایک اجلاس کے بعد اقدامات کا اعلان کیا گیا۔ ملک کے عوام ایک اور طویل مدتی لاک ڈاؤن کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ مختلف ذرائع سے شہریوں کی ذہن سازی کی جانے لگی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اب لاک ڈاؤن کے علاوہ کوئی راستہ باقی نہیں رہ گیا ہے۔ ہندوستان میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تیزی سے بڑھتی ہوئی تعداد کو روکنے کے لیے طویل مدتی لاک ڈاؤن کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ لاک ڈاؤن کے ذریعے ہی حکومت ملک میں تیزی سے پھیل رہے کورونا وائرس پر قابو پانے کے اقدامات کر سکتی ہے۔ کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں اضافے کو روکنے اور مرض کو پھیلنے سے روکنے کے لیے وائرس کی چین کو توڑنا ضروری ہے اور لاک ڈاؤن کے بغیر ایسا ممکن نہیں ہے۔ برطانیہ میں حکومت کی جانب سے کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں ہو رہے اضافے کو روکنے کے لیے متعدد اقدامات کیے گئے، لیکن کسی بھی اقدام کے کارکرد ثابت نہ ہونے کے بعد برطانیہ میں 3 ماہ طویل لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں اب برطانیہ میں کورونا کے مریضوں کی تعداد میں نمایاں کمی ریکارڈ کی جانے لگی ہے۔ ڈاکٹر شیام اگروال سر گنگا رام ہاسپٹل نئی دہلی نے کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں ہو رہے اضافے کو دیکھتے ہوئے کہا کہ ہندوستان بھر میں جو تعداد 2 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے، اگر اس کی رفتار کا مشاہدہ کیا جائے تو آئندہ 4 تا 5 دن میں اندرون 24 گھنٹے دوگنی تعداد میں مریضوں کی نشاندہی کی جانے لگی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ برطانیہ کے طویل مدتی لاک ڈاؤن سے تجربہ اور ان کی کامیابی کے امور کا جائزہ لیتے ہوئے حکومت ہند کو بھی فوری طور پر لاک ڈاؤن کے سلسلے میں فیصلہ کرنا چاہیے، تاکہ کورونا وائرس کے مریضوں سے رابطے کو ختم کرتے ہوئے مرض کو مزید وبائی ہونے سے محفوظ رکھا جا سکے۔ مغربی بنگال کی چیف منسٹر ممتا بنرجی نے مطالبہ کیا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کووڈ-19 کی دوسری لہر سے غلط انداز میں نمٹنے کے لیے استعفیٰ دے دیں۔ ممتا نے الزام لگایا کہ وزیر اعظم اس طبی بحران سے نمٹنے کے لیے پیشگی منصوبہ بندی میں ناکام رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مودی نے میڈیکل آکسیجن کی سپلائی کے بحران اور بعض ریاستوں کو درپیش ویکسین کی قلت کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے کچھ نہیں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو پہلے سے دوسری لہر کے انفیکشن کے لیے منصوبہ بندی کرنی چاہیے تھی۔ ریاست اتراکھنڈ کے شہر ہریدوار میں منعقد ہوئے کمبھ میلے سے شرکت کے بعد اپنی ریاستوں کو لوٹنے والوں سے کورونا وائرس پھیلنے کا خطرہ بڑھ چکا ہے۔
दारुलहुकूमत दिल्ली समेत कई रियासतों की हुकूमतों ने हिदायत जारी करते हुए कहा कि कुंभ में शिरकत के बाद लौटने वाले अफराद को बराह रास्त अपने आबाई मुकाम पर जाने की इजाज़त ना दी जाए, बल्कि इन्हें कुछ रोज़ तक इन्हें अलग थलग क्वारंटाइन रखा जाए। मुंबई के मेयर ने तो अपने बयान में यहां तक कहा कि कुंभ से वापस लौटने वाले लोग अब कोरोना वायरस की बीमारी को प्रसाद की तरह बांटेंगे, लिहाजा इन्हें क्वारंटाइन में रहना होगा। दिल्ली मैनेजमेंट अथॉरिटी के एक हुक्म में कहा गया है कि हरिद्वार के कुंभ मेले में शिरकत के बाद लौटने वाले दिल्ली के तमाम रिहायशियों की कौमी दारुलहुकूमत में आमद पर लाजमी तौर पर 14 दिन तक घर पर क्वारंटाइन रहना होगा। 4 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जो लोग भी कुंभ से लौटेंगे, इन सभी को अपनी तफसीलात, मसलन नाम, दिल्ली का पता, राब्ते का नंबर, शिनाख्ती कार्ड, दिल्ली से जाने और यहाँ आने की तारीख दिल्ली हुकूमत के पोर्टल पर जारी करना होगा। मध्य प्रदेश हुकूमत ने कुंभ से वापस आने वाले रियासत के शहरियों के लिए रहनुमा हिदायत जारी करते हुए कहा कि इन्हें अपनी तफसीलात जिला मजिस्ट्रेट को देनी होगी और इनका 1 हफ्ते तक घर पर क्वारंटाइन रहना लाजमी होगा। चीफ मिनिस्टर गुजरात विजय रूपानी ने जिले मजिस्ट्रेटों को हिदायत जारी की है कि गुजरात के वो शहरी जो कुंभ मेले में गए थे, इन्हें अपने गांव में बराह रास्त दाखिल होने की इजाज़त ना दी जाए और इन सभी का RT-PCR टेस्ट करवाया जाए। साबिक वज़ीर आज़म व सीनियर कांग्रेस कायद मनमोहन सिंह ने मुल्क में कोरोना वायरस की संगीन सूरत हाल पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक मकतूब रवाना करते हुए इससे निपटने के लिए कुछ तजावीज़ पेश किए हैं। वज़ीर आज़म के नाम अपने मकतूब में मनमोहन सिंह ने टीका अंदाजी में इजाफे पर जोर दिया है और साथ ही ये तजवीज़ पेश की है कि मखसूस तादाद के बजाय आबादी के बड़े हिस्से को टीका लगवाना चाहिए। 88 साल साबिक वज़ीर आज़म ने टीका अंदाजी की कोशिशों में इजाफे पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मुकर्ररा मुद्दत में मखसूस निशाने की टीका अंदाजी की जाती है तो पेशगी इसके ऑर्डर्स देना चाहिए ताकि वैक्सीन की बरवक्त तैयारी के साथ इसकी सरबराही और टीका अंदाजी के निशाने को हासिल किया जा सके। हरमैन शरीफीन के उमूर की जनरल प्रेसिडेंसी ने मस्जिद हरम में मजमा को कंट्रोल करने और मुनज़्ज़म रखने के लिए 750 अहलकारों को तैनात किया है। हरम मक्की में मजमा और भीड़ को मुनज़्ज़म करने की जिम्मेदार इंतज़ामिया के डायरेक्टर उसामा के मुताबिक 24 घंटे काम करने के लिए 750 अहलकार मौजूद हैं, जो मस्जिद हरम में मोतमरीन को आला तरीन खिदमात पेश करने में मसरूफ़ हैं। इनका मकसद मोतमरीन को पुरसुकून माहौल फराहम करना है ताकि वो अपने मनासिक पूरे इत्मीनान और सहूलत के साथ अदा कर सकें। सऊदी वज़ारत इस्लामी उमूर ने कोरोना मामले के सामने आने पर सऊदी अरब के 6 शहरों में 18 मसाजिद को आर्जी तौर पर बंद कर दिया है। आर्जी तौर पर बंद की जाने वाली मसाजिद को सैनिटाइजिंग के बाद दोबारा खोला जाएगा। वज़ारत इस्लामी उमूर की जानिब से जारी बयान में मज़ीद कहा गया है कि गुज़िश्ता 69 दिनों में मुमलिकत के मुख्तलिफ शहरों में अब तक 628 मसाजिद में कोरोना मामलों की तस्दीक होने के बाद इन्हें सैनिटाइजिंग के लिए बंद किया गया है। तेलंगाना के वज़ीर सेहत इटला राजेंद्र ने अवाम से अपील की है कि वो कोरोना की दूसरी लहर से खौफजदा ना हो बल्कि मुस्बित अंदाज में वायरस का मुकाबला करने तैयार रहें। वज़ीर सेहत ने कोरोना की दूसरी लहर व पॉजिटिव केसों में दिन ब दिन इजाफे के बावजूद हुकूमत की जानिब से किसी बंद या लॉकडाउन या कर्फ्यू के निफाज के इम्कानात को मुस्तरद कर दिया। मीडिया से बात करते हुए वज़ीर सेहत ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर इंतहाई ख़तरनाक है, ताहम एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल के ज़रिए खुद को बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि दूसरी लहर के बारे में अवाम को खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। अवाम को जान लेना चाहिए कि वो बेखौफ व मुस्बित रहते हुए कोरोना को शिकस्त दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने कोरोना की पहली लहर के दौरान वायरस पर काबू पाने में कामयाबी हासिल की और अवाम को साबिक़ा तजुर्बात से सीखते हुए गैर ज़रूरी दहशत से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि रियासत के तमाम नज़्व व नस्र कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाने इक़दाम कर रहे हैं। सनती इदारों की तंजीम फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से अपील की कि वो तेलंगाना में लॉकडाउन नाफिज ना करें क्योंकि इससे मईशत पर असर पड़ेगा। फेडरेशन के सदर उदय शंकर ने चीफ मिनिस्टर को मकतूब रवाना किया और कहा कि कोरोना पर काबू पाने टेस्टों की तादाद में इजाफा किया जाए और कोविड क़वायद पर सख्ती से अमल हो। मकतूब में कहा गया है कि पहली लहर के बाद से रियासत में मुआशी और तिजारती सरगर्मियाँ बतदरीज बहाल हो रही है। गुज़िश्ता लॉकडाउन के नतीजे में मुआशी सरगर्मियाँ बुरी तरह मुतासिर हुई थी। शहर हैदराबाद में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से तामीर किए गए 3000 पब्लिक टॉयलेट्स बहुत ख़राब हालत में हैं, जिससे इन टॉयलेट्स के मेंटेनेंस के लिए किसी एजेंसी को मामूर करने में ओहदेदारों की लापरवाही ज़ाहिर होती है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर 50 से 60 टॉयलेट्स की हालत का जायज़ा लिया गया तो देखा गया कि वो गंदगी से भरे हुए हैं और इनसे बदबू आ रही है और इनके अतराफ कचरे के अंबार भी हो गए और ये शहर के बदनुमा दाग की तरह दिखाई दे रहे हैं। कई पब्लिक टॉयलेट्स में डोर्स का सरखा कर लिया गया है और इनके अंदरूनी हिस्सों में जो नुकसान हुआ है इसकी मरम्मत मुश्किल है। इन टॉयलेट्स के लिए पानी की सप्लाई या ड्रेनेज कनेक्शन भी नहीं है। शहर हैदराबाद में कचरे की निकासी के लिए सैनिटाइजेशन मुहिम शुरू करने वजीर बल्दी नज़्व व नक्श व शहरी तरक्की तारक राम राव की हिदायत के बाद मेयर GHMC विजय लक्ष्मी ने अचानक खैरताबाद और चार मीनार जोन का मुआयना किया। मेयर ने मेहदीपट्टनम और कारवान सर्कल्स के डंपिंग पॉइंट्स का मुआयना करते हुए वहां पड़े कचरे पर बरहमी का इजहार किया।
उन्होंने मामूल के वक्फे से कचरे की निकासी न करने पर सैनिटरी कारकुनों को इंतबा दिया। तेलंगाना कांग्रेस ने रियासत में और मुल्क भर में कोरोना के बढ़ते वाक़यात के पेश नज़र रियासत के 7 बल्दियात के लिए इंतखाबात को मुलतवी करने का मुतालबा किया है। तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन ने ग्रेटर वारंगल और खम्मम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अलावा दीगर बल्दियात के लिए इंतखाबात का ऐलान किया है। कांग्रेस कायदीन ने इलेक्शन कमिश्नर सी पार्था सारथी को एक मकतूब तहरीर करते हुए मुतालबा किया है कि हुकूमत ने रियासत में कोरोना के बढ़ते वाक़यात को देखते हुए SSC और इंटरमीडिएट के इम्तहानात मनसूख कर दिए हैं, जबकि कौमी सतह पर भी मरकज़ी हुकूमत ने तारीख़ी कुंभ मेले के बशमुल कई प्रोग्रामों को मनसूख कर दिया है। मकतूब में बताया गया है कि इंतखाबात में अवाम की एक बड़ी तादाद शामिल होती है। इसके अलावा रायदही से 13 दिन पहले तशहीरी मुहिम के सिलसिले में कायदीन के साथ कारकुन और अवाम की भी एक बड़ी तादाद होती है। घर घर इंतखाबी मुहिम महफूज नहीं है और इससे कोरोना के मजीद फैलने का खतरा लाहक है। तेलंगाना में हर गुजरते दिन कोरोना के बढ़ते वाक़यात पर रियासत बिलखुसूस शहर हैदराबाद में वाक़ कई अपार्टमेंट्स और गेटेड कम्युनिटीज़ ने कॉम्प्लेक्स के अवाम को बाहर जाने और अंदर आने पर अज़खुद तहदीदात आयद करना शुरू कर दिए हैं। कई अपार्टमेंट्स ने ऐप्स का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है, जिसके ज़रिए मेज़बानों से ऐप के यहाँ आने वाले मेहमानों, सेल्स पर्सन, टेक्नीशियन या दीगर खिदमात के लिए तलब करदा अफराद की तफसीलात तलब की जा रही है और कई अपार्टमेंट्स में बैरूनी अफराद के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। हंगामी हालात में ही बड़ी उम्र के लोगों को बाहर जाने की इजाज़त दी जा रही है। कॉम्प्लेक्स में मुक़ीम अफराद की बाकायदा हेल्थ चेकिंग के लिए डॉक्टरों की खिदमत हासिल की जा रही है। चंद कॉम्प्लेक्सों में कोरोना के हल्के अलामतों के केसेस सामने आए हैं। सेल्फ कंटेनमेंट जोन कायम किए गए हैं। शहर के हाईटेक सिटी, कोंडापुर, कोकटपल्ली, मियाँपुर और उपल जैसे इलाकों के गेटेड कम्युनिटीज़ में मुक़ीम अफराद से कहा गया है कि वो अपने घरों में ही रहें, बाहर ना निकलें। मुकम्मल सैनिटाइज सिक्योरिटी स्टाफ के ज़रिए रेसिडेंशियल इलाकों में अशिया ज़रूरिया जैसे दूध, तरकारियाँ, दवाएँ और सौदा अवाम की दहलीज तक पहुँचाई जा रही है।